હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ ઇવનિંગ. વાઇડર વેબિનારના આજે બીજા દિવસે આપણી સાથે છે ડૉક્ટર પ્રતીક્ષા પટેલ, જે ગુજરાતમાં એક પતંગિયા માટે ખૂબ જાણકાર છે અને ખૂબ જ નોલેજ ધરાવે છે પતંગિયામાં. તો હું એમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આગળ કન્ટિન્યુ કરે. મેડમ. થેન્ક યુ ઋષિ. નમસ્તે બધાને. લોકડાઉન દરમિયાન આખી ટીમે જે બહુ સુંદર કામ ઉપાડ્યું છે હાથમાં વેબિનારનું, અને એ સાથે જોડવા માટે મને ખૂબ ખૂબ આનંદ છે. તમારી સાથે આજે પતંગિયા વિશે થોડી વાતચીત કરીશું. ખૂબ જ બેઝિક વાતો અત્યારે આપણે બટરફ્લાયથી કરીશું. શરૂઆત આપણે ખૂબ જ બેઝિક આસ્પેક્ટ સાથે કરીએ. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન આવતો કે બટરફ્લાય શું કામના? આપણો માણસનો એક સ્વભાવ છે કે પ્રકૃતિમાં કઈ વસ્તુ શું કામની. તો પહેલા આપણે એ જાણી લઈએ કે બટરફ્લાયની ઉપયોગિતા શું છે. માણસ માટે નહીં, પણ પ્રકૃતિના પરિસરમાં ઇકોલોજીકલી આપણે જોવા જઈએ તો બટરફ્લાયથી સિગ્નિફિકન્ટ શું છે? તો તેઓ બાયોલોજીકલી ઇન્ડિકેટર્સ છે. પર્યાવરણમાં અલગ અલગ આસ્પેક્ટના એ લોકો સૂચક છે. ક્લાઇમેટ ચેન્જ ઇન્ડિકેટર્સ છે. વાતાવરણમાં કોઈ પણ જાતના ચેન્જીસ થતા હોય તો બટરફ્લાય આપણને ઇન્ડિકેટ કરી આપે છે. બીજો એક મહત્વનો રોલ છે લોકોનો કે પોલિનેટર્સ છે. પરાગનયનમાં એમનો બહુ મોટો ફાળો છે. પરાગરજ એક પુષ્પથી બીજા પુષ્પ પર પહોંચાડવું એમનું બહુ મોટું કામ છે. એની સાથે સાથે તેઓ ફૂડ ચેઇનની બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ લિંક છે. આજે બટરફ્લાયની ઇમ્પોર્ટન્સ છે, ધ્યાનમાં રાખજો. આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક વચ્ચે આખા પ્રેઝન્ટેશનમાં જોતા રહીશું, રિપીટ કરતા રહીશું. બટરફ્લાય શું છે? તો ઘણા લોકોના પ્રશ્નો એ પણ હોય છે કે બટરફ્લાય કીટક વર્ગમાં છે કે બીજા કયા વર્ગમાં છે, ઉડી શકે છે તો કયા ગ્રુપમાં એને મૂકવું. બટરફ્લાય બેઝિકલી ઇન્સેક્ટ ગ્રુપમાં આવે છે. બટરફ્લાયની સાથે સાથે એમના કહી શકાય કે નિયરેસ્ટ કઝિન એટલે કે મોથ એ પણ બટરફ્લાયની સાથે લેપિડોપ્ટેરા તરીકે ઓળખાય છે. લેપિડોપ્ટેરા એટલે કે એવા જીવજંતુઓ જેમની વિંગ્સ સ્કેલી હોય. સ્કેલ્સ શું છે? તો કીટક વર્ગમાં, સમસ્ત કીટક વર્ગમાં પતંગિયા બીજા જીવજંતુઓથી આ કલરફુલ સ્કેલ્સના લીધે અલગ પડે છે. બાકી બધા જીવજંતુઓ છે, જેમ કે તમે આપણે માખી કે મચ્છર જોઈએ તો એની વિંગ ટ્રાન્સપરન્ટ હોય છે. વિંગ્સમાં આરપાર જોઈ શકાય છે. જ્યારે પતંગિયા અને મોથ અથવા પતંગિયા અથવા ફુદ્દા, એના જે વિંગ્સ છે એના ઉપર આ કલરફુલ સ્કેલ્સ રહેલા છે. જ્યારે આપણે પતંગિયા કે ફુદ્દાને હાથ લગાડીએ ત્યારે આપણા હાથમાં કલર આવી જાય છે. જે કલર કે રજ છે એ સ્કેલ્સ છે એમના. આ સ્કેલ્સ બટરફ્લાય માટે ખૂબ જ કામના છે. એમને કલર તો આપે જ છે, પણ એની સાથે સાથે બટરફ્લાયને જ્યારે કોઈ પ્રિડેટર અટેક કરે છે ત્યારે છટકીને ભાગવા પણ મદદ કરે છે. બટરફ્લાય જ્યારે પકડમાં હોય ત્યારે આ સ્કેલ લપસી જાય અને પતંગનું છટકી શકે છે. આ જે સ્કેલ્સ છે એક પોતાનો સ્કેલનો કલર નથી હોતો, પણ આજે પતંગિયાને કલર્સ મળે છે. એના સ્ટ્રક્ચરલ કલર્સ છે. ઘણીવાર તમે જોશો કે પતંગનું પાંખ ખુલે બંધ કરે અને તમે જુદા જુદા એંગલ પર ઉભા રહો તો તમને અલગ અલગ કલર્સ દેખાય છે એના. ક્યારેક બ્રાઇટ બ્લુ કલર હોય તો ક્યારેક બ્રાઉન કલર હોય. એક જ પતંગિયામાં તમને અલગ અલગ કલર્સ દેખાઈ આવે. કારણ એ છે કે જ્યારે પ્રકાશ આ સ્કેલ્સ પર પડે છે અને પરાવર્તિત થાય છે ત્યારે એનો રંગ તમને અલગ દેખાય છે. બીજા જીવજંતુઓમાં જેમ રંગ પિગમેન્ટ્સના લીધે હોય છે, અહીંયા સ્કેલના સ્ટ્રક્ચરના લીધે હોય છે. આ સ્કેલ્સનું બીજું એક ફંક્શન એ છે કે એ પતંગિયાના પાંખો ગરમ રાખવામાં મદદ કરે છે, ટેમ્પરેચર કંટ્રોલમાં મદદ કરે છે. આ સ્કેલ્સના માધ્યમથી પતંગિયા હીટ કેપ્ચર કરી શકે છે. સ્કેલ્સમાં અરેન્જમેન્ટ આપણે જોવા જઈએ તો જે રીતે ફિશ પર સ્કેલ્સ અરેન્જ હોય છે એ રીતે પણ અરેન્જમેન્ટ હોય છે. અને સાદી રીતે આપણે જોઈએ તો મકાનના જે નળિયા છે એના ઉપર જે રીતે અરેન્જમેન્ટ હોય છે એ રીતે પણ ગોઠવાયેલા હોય છે. એક આ સુંદર ફોટોગ્રાફ છે જે મને નેટ પરથી મેં સોર્સ કર્યો છે. આ બટરફ્લાયની વિંગના સ્કેલ્સનું સ્ટ્રક્ચર છે.
બંને બટરફ્લાય અને મોથ કલેક્ટિવલી આપણે લેપિડોપ્ટેરા ગ્રુપમાં મૂકીએ છીએ, જેમ અગાઉ કીધું. અને ઇન્સેક્ટ્સનું સૌથી મોટું ગ્રુપ છે. ઓલમોસ્ટ 1,50,000 જેટલી સ્પીસીસ છે. અને આ જે જીવજંતુઓ છે એ બીજા જીવજંતુઓ કરતાં સ્કેલિડિન્સ અને પ્રોબોસિસ એમનો માઉથ પાર્ટ છે, જેનાથી તેઓ ફ્રૂટ્સમાંથી લિક્વિડ્સ, બીજા લિક્વિડ ફૂડ પર્સને લોકો સક કરી શકે છે, એના માટે છે. બટરફ્લાયઝની ઓલમોસ્ટ 18,000 સ્પીસીસ છે વર્લ્ડમાં. અને ઇન્ડિયામાં જોવા જઈએ તો 1,319 સ્પીસીસ છે. અહીંયા તમે સાઈડમાં મોથ અને બટરફ્લાય એ બંનેના પિક્ચર જોઈ શકશો. મોથ જે છે એ મૂન મોથ છે, અને નીચે જે છે એ ઇન્ડિયન પેરો અથવા ટારુકસ ઇન્ડિકા છે. બંનેના એન્ટીનાની કમ્પેરિઝન માટે અને બંનેના સ્ટ્રક્ચરના કમ્પેરિઝન માટે એક મારી સાથે શેર કર્યો છે. મૂન મોથના એન્ટીના તમે જોશો તો થોડાક મોટા અને ફેદરી છે, જ્યારે ટારુકસ ઇન્ડિકાની છે એના એન્ટીના પ્લગ શેપ છે. ડિટેલમાં સેજ વધારે જોઈએ તો મોથ અને બટરફ્લાયઝમાં ડિફરન્સ છે. જોડે આપણે નામ લેતા હોઈએ છીએ બંનેનું. એન્ટીના બંનેના ડિફરન્ટ થાય છે. પતંગિયાના જે એન્ટીના છે એ યુઝ્યુઅલી ક્લબ્ડ અથવા તો ફૂક્ડ શેપ હોય છે. ફૂક શેપ તમને હેસ્પેરિડી ફેમિલીના મેમ્બર જેની આપણે આગળ વાત કરીશું એના હોય છે. જ્યારે મોથના એન્ટીના એ ફેદરી પણ હોઈ શકે છે, ટેપર્ડ હોઈ શકે છે, આગળથી થોડા જાડા પણ હોઈ શકે છે, પણ એ ક્લબ આકારના નથી હોતા. ક્લબ આકાર એટલે આપણે ટેનિસ કે બેડમિન્ટનનું રેકેટ જોઈએ, આગળથી કઈ રીતે મોટું હોય છે એ રીતના હોય છે. મોટાભાગે બટરફ્લાયઝ ડાયર્નલ હોય છે. દિવસના દરમિયાન તે લોકો એક્ટિવ હોય છે, અને રાત્રિ દરમિયાન એ લોકો ઇનએક્ટિવ હોય છે. જ્યારે કે મોથ મોટા ભાગે નિશાચર હોય છે. રાત્રિના સમયે તેઓ એક્ટિવ હોય છે. પણ પ્રકૃતિમાં કાયમ કંઈક ને કંઈક એક્ઝેપ્શન્સ હોય છે. અમુક બટરફ્લાયઝ છે, જેમ કે વેનેટિસ બેડા અથવા તો ઇવનિંગ બ્રાઉન, રાઇટ હેન્ડ સાઈડ પર ટોપ પર તમે એનું પિક્ચર જોઈ શકશો. એ સાંજના સમયે એક્ટિવ હોય છે. એ જ રીતે હમિંગબર્ડ હોકમોથ છે, એ દિવસ દરમિયાન એક્ટિવ હોય છે. આવા થોડાક એક્સેપ્શન્સ પણ નેચરમાં છે. બટરફ્લાય જ્યારે રેસ્ટિંગ પોઝિશનમાં હોય ત્યારે પાંખ બંધ કરીને બેસે છે, અથવા તો જ્યારે મોથ આરામથી કરવા બેસે છે ત્યારે એની વિંગ સાઈડ બાય સાઈડ હોય છે, અથવા તો ફેલાયેલી હોય છે. પતંગિયા જ્યારે બાસ્કિંગમાં હોય ત્યારે જ વિંગ સ્પ્રેડ કરે છે, નહીં તો નોર્મલ પોઝિશનમાં વિંગ ક્લોઝ કરીને જ બેસે છે. પતંગિયા જે રીતે ઉપરની સાઈડે પાંખો બંધ કરે છે, મોથ એ રીતે ક્યારેય પોતાની પાંખ બંધ કરી શકતા નથી. બટરફ્લાયઝની જે પાંખો છે, ફોરવિંગ અને હાઇન્ડવિંગ, ઘણા લોકોને જ્યારે પ્રશ્ન કરવામાં આવે કે પતંગિયા કે ફુગ્ગાની કેટલી પાંખો હોય છે, તો 2 જવાબ મળતો હોય છે. પણ 2 ની 4 વિંગ હોય છે. ફોરવિંગ, 2 ફોરવિંગ અને 2 હાઇન્ડવિંગ. આગળની 2 પાંખો અને પાછળની 2 પાંખો. આગળની પાંખ અને પાછળની પાંખ જે છે એ પતંગિયાના કેસમાં ફ્રી હોય છે. જ્યારે મોથના કેસમાં આગળની પાંખ અને પાછળની પાંખ એ ક્રેન્યુલમ નામના ઓર્ગનથી જોડાયેલી હોય છે. પતંગિયોની 4 પાંખ ફ્રીલી મૂવ કરી શકે છે, જેના લીધે જ્યારે મોથની હાઇન્ડવિંગ, ફોરવિંગ અને બીજી હાઇન્ડવિંગ, ફોરવિંગ એ જોડે ફ્લેપ થાય. બરોબર. બટરફ્લાયઝના જે પ્યુપા છે, જે કોશિકા છે, એ પ્રોટેક્ટેડ નથી હોતા. જ્યારે કે મોથના જે પ્યુપા છે એ કકુન ફોર્મમાં પ્રોટેક્ટેડ હોય છે. એના જે લાર્વાથી સિલ્ક બને છે, એનાથી જુદી જુદી ટાઈપના સ્ટ્રક્ચર પોતાના કોશિકાની આજુબાજુ બનાવતું હોય છે. મોથનું પ્યુપા ક્યારે પણ અનપ્રોટેક્ટેડ કે ઓપન નથી હોતું. અને જેમ કે ઓલિયન્ડર હોકમોથ છે, તેનો પ્યુપા તમને કરણની નીચે અંડરગ્રાઉન્ડ મળશે. જ્યારે બટરફ્લાયઝના પ્યુપા ડાળ પર કે બીજે ક્યાંક બીજા કોઈક આધારથી લટકેલા જોવા મળશે. બટરફ્લાય મોર્ફોલોજી પર નજર મારીએ, પતંગિયાનો આકાર કઈ રીતનો હોય છે. સામાન્ય જેમ જીવજંતુઓની જેમ શરીર, માથું, ધડ અને માથું, પેટ અને ધડની રીતે ડિવાઇડેડ છે. એના 6 પગ હોય છે. આ 6 જોઇન્ટેડ લેગ્સ નું સેજ ધ્યાન રાખજો, કારણ કે એક બટરફ્લાયનું આખું ગ્રુપ છે કે જે આપણને 6 નહીં પણ 4 પગ જોવા મળે છે. 2 એન્ટીના છે. પ્રતિક્ષા, સોરી ટુ ઇન્ટરવન. બહારથી આપણા પાર્ટિસિપન્ટ છે, એમની રિક્વેસ્ટ છે કે તમે હિન્દીમાં પ્રેઝન્ટ કરો તો એ લોકો પણ સમજી શકે. ઓકે. હા, થેન્ક યુ. હિન્દી will be a bit difficult. Okay. તો shall we repeat or અહીંયાથી સ્ટાર્ટ રાખીએ? જેમ તમને ઠીક લાગે એમ. હેલો.
જેમ તમને ઠીક લાગે એમ. As per your convenience, no problem. If you want to repeat, then you can repeat it. આઈ થિંક આગળ કન્ટેન્ટ ઇંગ્લિશમાં હતો તો વાંધો નથી. Okay. ઓકે, અગર રિપીટિંગ ઓલ્સો. Yeah, it would be better. Tanvi go ahead with English. Anyways, बटरफ्लाइज की इम्पोर्टेंस क्या है देखा जाए तो वो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं, क्लाइमेट चेंज के इंडिकेटर्स है, पॉलिनेटर्स भी और फूड चेन में इम्पोर्टेंट लिंक है. बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स किस तरह से कि जहाँ पे आपको अगर बटरफ्लाइज की नंबर और डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे टॉप प्रेडेटर भी अच्छी संख्या में मौजूद है. पूरी एक श्रृंखला क्योंकि भोजन की वहाँ पे जुड़ी हुई है. बटरफ्लाइज पे फीड करने वाले जो प्रेडेटर्स हैं वो हासिल है और उन पर फीड करने वाले सेकेंडरी प्रेडेटर भी वहाँ पर हैं. तो ऑब्वियसली कि जो टर्शरी प्रेडेटर्स है उनकी भी संख्या आपको अच्छी तरह देखने को मिलेगी. जहाँ पे बटरफ्लाइज की संख्या कम है तो वो इंडिकेट करता है कि शायद वहाँ का वातावरण हेल्दी नहीं है और मेरी टॉप प्रेडेटर्स जो है उनकी भी संख्या वहाँ पे कम है. क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर्स इस तरह से कि क्लाइमेट में जो भी फेरबदल होते हैं उसके लिए बटरफ्लाइज काफ़ी सेंसिटिव है. कई बार ये देखा गया है कि जब मानसून ज़्यादा होने वाला है, बारिश ज़्यादा होने वाली है, बारिश कम होने वाली है, तब बटरफ्लाई एग लेइंग बहुत ही बढ़ जाता है या फिर प्यूपा ज़्यादा बनते हैं. बटरफ्लाइज को किसी तरह ये पता चल जाता है कि आने वाला मौसम ठीक नहीं है तो उस तरह से वो प्रिपेयर्ड रहते हैं. साथ में जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे बटरफ्लाइज की संख्या भी कम हो जाती है. जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है वहाँ पे भी कम हो जाती है. इसलिए काफ़ी जगह पर इंडस्ट्रीज़ में ये इंडिकेट करने के लिए कि पॉल्यूशन का लेवल क्या है बटरफ्लाई गार्डन डेवलप किए जाते हैं. बटरफ्लाइज की नंबर बढ़ते घटते रहने पर ये पता चलता है कि वहाँ की परिस्थिति क्या है. बटरफ्लाइज पॉलिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जहाँ पे बटरफ्लाई गार्डन डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे आप क्या स्पीशीज़ लगाते हैं, उनके नेचुरल नेक्टर प्लांट्स के साथ हम मैसेज न करें उसका ध्यान रखना पड़ता है. बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स के साथ मैंने आपको ये भी समझा दिया कि फूड चेन में वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है. बटरफ्लाइज या तितलियाँ क्या है तो उड़ने वाले दूसरे जीव जंतुओं की तरह है, लेकिन दूसरे जीव जंतुओं से वो इस तरह से अलग है कि उनके पंखों पर स्केल्स हैं, कलरफुल स्केल्स हैं. बटरफ्लाइज और मॉथ उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं उन दोनों के पंखों पर ये स्केल्स रहते हैं जो दूसरे इंसेक्ट्स के नहीं होते हैं. हम छोटे होते हैं तब हमने कभी बार बटरफ्लाइज या मॉथ को पकड़ने की कोशिश की होती है, तो हमारे हाथ में जो रंग लग जाता है, जो डस्ट लग जाता है, वो भी और कुछ नहीं लेकिन ये बटरफ्लाइज के स्केल्स हैं. अलग अलग स्पीशीज़ में बटरफ्लाइज के स्केल्स का आकार अलग होता है, उनकी अरेंजमेंट भी अलग होती है. तितलियों को उनका ये रंग इन स्केल्स की वजह से मिलता है. ये स्केल खुद कलरफुल नहीं होते हैं, लेकिन इन स्केलों पर जब जिस तरह से प्रकाश परावर्तित होता है उस हिसाब से हमें अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं. ये स्केल्स बटरफ्लाइज को अपने शिकार से बचने में भी मदद करते हैं. जब कोई शिकार पकड़ने जाता है तो ये स्केल निकल के बाहर आ जाते हैं और बटरफ्लाई स्लिप होके निकल पाता है. इन स्केल्स का एक हम क्लोजअप देखते हैं. एक माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है जहाँ पे हमें स्केल का स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर तरीके से दिख रहा है. दोनों बटरफ्लाई और मॉथ जीव जंतु वर्ग का सबसे बड़ा ग्रुप है. तकरीबन 1,50,000 प्रजातियां हैं पूरे विश्व में. ये बाकी जीव जंतुओं से उनके स्केली विंग और एक स्क्वाइड प्रोपोजिस जो उनका माउथ पार्ट है जिसकी मदद से वो अपना खाना लेते हैं, इन दो भाग की वजह से वो बाकी सारे जीव जंतुओं से अलग हैं. विश्व में तकरीबन 18,000 प्रजातियां हैं बटरफ्लाइज की और इंडिया में 1319 स्पीशीज हैं. यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि मून मॉथ और नीचे पैरोपस इंडिका जो इंडियन केरो है, दोनों के एंटीना आप जरा गौर से देखिएगा.
तो बटरफ्लाइज और मॉथ के बीच में अंतर क्या है? काफ़ी बार ये कंफ्यूजन होता है कि बटरफ्लाइज क्या है, मॉथ क्या है। इनफैक्ट ये देखा जाए तो पुराने जो फॉसिल्स है उसके हिसाब से मॉथ बटरफ्लाइज के प्रेडिसर रहे हैं। बटरफ्लाइज और मॉथ के एंटीना जैसे हमने ऊपर देखा कि बटरफ्लाइज के क्लब शेप एंटीना है, जिस तरह से हम टेनिस का रैकेट या बैडमिंटन का रैकेट देखते हैं उसका जो आकार होता है थोड़े उस तरह से होते हैं। और एक स्किपर का ग्रुप है बटरफ्लाइज में ही जिसके एंटीना हुक्ड होते हैं। तो या तो हुक शेप के एंटीना या क्लब शेप के एंटीना, ये एक बटरफ्लाई का आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। आपके पास अगर कोई बटरफ्लाई या मॉथ है उसको कंफ्यूजन है तो आप उसका एंटीना देख लीजिए तो पता चल जाएगा कि वो बटरफ्लाई या एंटीना बटरफ्लाई है या मॉथ है। मौत के एंटीना अलग-अलग आकार के आते हैं, कुछ फेदरी भी होते हैं, कुछ सीधे-सीधे होते हैं कि कोई खास आकार नहीं होता है, कुछ ऊपर से मोटे होते हैं लेकिन कभी भी प्लग या हुक शेप नहीं होते हैं। ज़्यादातर बटरफ्लाइज डायनल है, पिंचर है, दिन के समय में एक्टिव रहते हैं, लेकिन कुछ स्किपर्स हैं और इंडियन ब्राउन जैसे बटरफ्लाइज हैं, वो सांझ के समय भी एक्टिव होते हैं। मॉथ हालांकि जब देखा जाए तो वो रात के समय ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, दिन के समय में कम आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन हमिंग बर्ड हॉकमॉथ जैसे मॉथ है जो दिन के समय भी एक्टिव होते हैं। कुदरत में ऐसे एक्सेप्शंस हमको देखने को मिलते ही हैं। रेस्टिंग पोजीशन में बटरफ्लाइज अपने विंग्स को पीछे की तरफ फोल्ड करके बैठती हैं या तो साइड बाय साइड रखती हैं, जबकि मॉथ अपने विंग्स को स्प्रेड करते हैं या फिर बॉडी के साथ चिपका के साइड साइड बाय साइड रखते हैं। मॉथ बटरफ्लाई की तरह अपने विंग्स कभी भी ऊपर की तरफ फोल्ड नहीं कर पाते हैं। अक्सर ये प्रश्न रहता है जब बच्चों के साथ भी बात होती है कि बटरफ्लाइज के कितने विंग होते हैं, तो ये कॉमनली आंसर सुनने को मिलता है कि 2 विंग्स होते हैं, लेकिन 2 नहीं 4 विंग्स होते हैं। बटरफ्लाइज और मॉथ के जो 4 विंग्स हैं, बटरफ्लाइज में चारों विंग इंडिपेंडेंट है और आराम से इंडिपेंडेंटली फ्लाइट मूव करते हैं, जबकि मॉथ में उसकी जो 4 विंग है, आगे का पंख और पीछे का पंख, वो फ्रेनुलम नाम के एक हुक से जुड़े होते हैं। इसलिए बटरफ्लाई जब मॉथ अपने विंग्स को हिलाता है तो दोनों पंख साथ में हिलते हैं। बटरफ्लाइज का जो प्यूपा है उसका कोई भी प्रोटेक्टेड कवरिंग नहीं होता है। प्यूपा सीधा किसी ब्रांच से या दूसरे सपोर्ट से रहता है, जबकि मॉथ का जो प्यूपा है वो ककून या किसी तरह के कवरिंग में होता है, हार्ड शेल में होता है। मोस्टली ऑन ग्राउंड या अंडरग्राउंड देखने को मिलता है। बटरफ्लाई मॉर्फोलॉजी समझ लेते हैं तो बटरफ्लाई आइडेंटिफिकेशन में भी काफ़ी आसानी होती है। यहाँ एक डिटेल मॉर्फोलॉजी देने की बजाय मैंने बहुत ही बेसिक मॉर्फोलॉजी की बात की है। दूसरे जीव जंतुओं की तरह ही बटरफ्लाई का भी जो बॉडी पार्ट है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है। इसके 6 जॉइंटेड लेंस है, संयुक्त पाँव है, 2 एंटीना है, संयुक्त आंखें हैं 2, 4 विंग्स हैं और एक प्रोबोसिस है। प्रोबोसिस जैसे पहले बात हुई हमारी कि ये बहुत ही अलग भाग है बटरफ्लाइज और मॉथ में जो इन्हें बाकी जीव जंतुओं से अलग करता है। बटरफ्लाइज और मॉथ जो है वो बाकी जीव जंतुओं की तरह चबा के नहीं खा सकते हैं। उनका जो फूड है वो लिक्विड रहता है, तो उन्हें उनके लिए ये जो ऑर्गन है वो एक स्ट्रॉ का काम करता है, जिससे वो ये सारे लिक्विड्स को सिप करते हैं। बटरफ्लाइज के फोरविंग और हाइड विंग पर आप सेल और अलग-अलग वेन्स देखेंगे। जिस तरह एक पतंग को उसकी कमान आकार देती है, जैसे बटरफ्लाई की विंग्स को ये वेन्स आकार देने में बहुत ही काम आते हैं। ये जो वेन्स है उसमें ह्यूमोलिन भरा रहता है, जिसकी वजह से बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं वो एक आकार ले पाते हैं। हमने देखा कि तितलियाँ जो है वो इंसेक्टा क्लास को बिलोंग करती है और ऑर्डर उनका लेपिडोप्टेरा है। तो थोड़ा ऊपर का जो क्लासिफिकेशन है हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये क्लासिफिकेशन आगे बटरफ्लाई आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी मददरूप रहता है, इसलिए मैं सिर्फ सुपर फैमिली तक आपको ले जा रही हूँ। बटरफ्लाइज की जो 2 सुपर फैमिलीज में उनको डिवाइड करते हैं, हेस्पेरियोइडी और सुपर फैमिली पेपिलियोनोइडी। जितने भी स्किपर्स हैं उनको हमने इस सुपर फैमिली हेस्पेरियोइडी के अंडर रखा है और उस सुपर फैमिली के अंडर एक ही फैमिली है हेस्पेरिडी, जिसमें सारे स्किपर्स हैं। स्किपर्स क्या है वो हम आगे देखते हैं।
सुपर फैमिली पेपिलियोनॉइडी में 5 फैमिलीज हैं। निम्फलिडी जो सारे ब्रश फूटेड हैं, लिक्सनिडी जिसमें ब्लूज छोटे छोटे बटरफ्लाइज आते हैं वो आते हैं, रियोडिनिडी में जूडीज और पंचीज नाम के बटरफ्लाइज आते हैं, पेपिलियोनिडी में स्वेलोटेल्स हैं, पायरिडी में व्हाइट्स और येलो बटरफ्लाइज हैं। एक एक फैमिली के हम एक एक दो दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्कीपर जो हैं वो Sorry to disturb you again, but some noise disturbings are happening, and your voice is not clear actually. Could you please speak quite loudly? Sure. बेटर Oh, yeah, better, better. Thank you. ओके। स्कीपर्स जो हैं वो बटरफ्लाइज के बाकी बटरफ्लाइज के जितने कलरफुल साधारण टाइम को देखने में नहीं मिलते हैं, तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है स्कीपर्स और मॉथ के बीच में भी। लेकिन स्कीपर्स को भी आप एंटीना देखेंगे तो या तो क्लब शेप में या तो घूमते हैं। ये दो स्कीपर्स हैं, इंडियन और कॉमन बैंडेड आउल। लेकिन इसमें भी एग्जेप्शंस है कि काफ़ी सारे स्कीपर्स बहुत कलरफुल भी होते हैं। निम्फलिडे या ब्रश फुटेड मैंने आपको आगे बताया कि जैसे बटरफ्लाई के 6 पाँव होते हैं, ब्रश फुटेड फैमिली के 2 पाँव जो हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए अगर देखा जाए तो हमें बटरफ्लाई के निम्फलिडी बटरफ्लाई के 4 ही पाँव दिखेंगे। आप इन दोनों फोटोग्राफ्स में जहाँ पे टोनी को व्यू टाइगर है देख सकते हैं कि 4 पाँव भी क्लियरली दिख रहे हैं। ब्रश फुटेड के बाद का ग्रुप है ब्लूज। ये काफ़ी छोटे बटरफ्लाइज होते हैं और जब ओपन विंग करते हैं तो इन बटरफ्लाइज के जो मेल्स हैं उनके ओपन विंग का एक रेडिएशन ब्लू कलर होता है। यहाँ पे फ्लू भी है जो शेड्यूल 2 में आती है स्पीशीज, और ग्लासजेल है जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा बटरफ्लाई है। रियोडिनिडी में जूडीज और पंचीज आते हैं। गुजरात में डबल बैंडेड जूडी हमको देखने को मिलता है इस ग्रुप से, इस फैमिली से। सेलोटेल्स बाकी बटरफ्लाइज की कंपैरिजन में काफ़ी बड़े होते हैं। पेपिलियोनिडी ग्रुप पूरा, यहाँ पे स्पॉट टेल और कॉमन लाइन है। इन बटरफ्लाइज का लाइफ स्पैन भी आगे के जो छोटे बटरफ्लाइज हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा रहता है। गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में पायरेडे बहुत ही कह सकते हैं सिग्निफिकेंट फैमिली है, बर्ड्स एंड येलोज। ये जो पूरा क्वालिटीज का ग्रुप है, क्रिम्सन टिप वाइट अरब, स्मॉल सैल्मन अरब, लार्ज सैल्मन अरब, ब्लू स्पॉटेड अरब, ये सारे क्वालिटीज को देखा जाए तो गुजरात में काफ़ी अच्छी संख्या में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट क्रिम्सन टिप का एक सब स्पीशीज सौराष्ट्र गुजरात से भी रिकॉर्डेड है और काफ़ी यूनिक है इस तरह से ये क्वालिटीज ग्रुप पूरा। बटरफ्लाइज के लाइफ साइकिल को हम मेटामॉर्फोसिस का नाम देते हैं क्योंकि बटरफ्लाइज के जो चारों स्टेज है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं और ये चारों स्टेज की भी अपनी अपनी खासियत है। यहाँ हमें प्लेन टाइगर का लाइफ साइकिल हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा एग है, उसका लार्वा ये ली है और प्यूपा एंड देन फाइनली एडल्ट फॉर्म है। हम सभी स्टेजेस को एक के बाद एक देखते हैं। बटरफ्लाइज के एग्स हैं डिपेंडिंग अपॉन स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज में जो एग्स का आकार है, एग्स का आउटर स्ट्रक्चर है वो अलग अलग देखने को मिलता है, अलग अलग साइज में देखने को मिलता है। कुछ बटरफ्लाइज एक एक अंडा ही रखती है, काफ़ी बटरफ्लाइज ऐसी है जो बहुत सारे अंडे एक साथ रखती हैं। इसलिए ये जो अंडे हैं अपने होस्ट प्लांट पे या होस्ट प्लांट के आसपास ही रखती हैं ताकि जब कैटरपिलर बाहर निकले तो कैटरपिलर को होस्ट प्लांट ढूंढने में ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। यहाँ पर अलग अलग आकार के बटरफ्लाई, अलग अलग आकार के एग देख सकते हैं बटरफ्लाइज के। जो हेरी एग है वो जोकर बटरफ्लाई का है, उसके नीचे आप जो देख रहे हैं एग्स गोल्फ बॉल जैसे वो क्यूरेटस सनबीम का एग्स हैं और बहुत सारे एग्स जो एक साथ रखे हुए हैं वो स्मॉल सैल्मन बटरफ्लाई के एग्स हैं। दूसरा स्टेज है लार्वा। जब एग से कैटरपिलर बाहर निकलता है उसके बाद उसका सबसे पहला खाना उसकी एग शेल होता है। बाहर निकलने के बाद वो अपना एग शेल
लेता है, धीरे-धीरे फिर वो लार्वा होस्ट काट के खाना शुरू करता है। जैसे-जैसे कैटरपिलर बड़ा होता है, वो काफ़ी मोल्टिंग करता है, कम से कम 4 से 5 बार वो अपनी स्किन शेड करता है। और ये स्किन शेड के अलग-अलग जो स्टेजेस हैं हम उनको इंस्टार भी कहते हैं, फर्स्ट इंस्टार, सेकंड इंस्टार, अप टू 5 इंस्टार। पूरी तरह से ग्रोथ हासिल करने के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देता है, वो एक जगह पर सेटल हो जाता है और उस सूटेबल स्पॉट पे वो अपना प्यूपा बनाना शुरू करता है। यहाँ पे जो कैटरपिलर्स देख रहे हैं वो कॉमन रोज बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स हैं। छोटा सा कैटरपिलर बाहर निकल कर अपना शेल खा रहा है एंड सब्सिक्वेंटली नीचे का जो स्टेज है वो भी प्यूपा के लिए वो प्रोसीड कर रहा है। लार्वे के बाद का नेक्स्ट स्टेज है प्यूपा फॉर्मेशन। ये जब कैटरपिलर को लगता है उसने काफ़ी फूड स्टोर कर लिया है तो वो एक जगह पर जाकर खुद को अटैच कर लेता है, एंकर कर लेता है और पहले प्यूपा बनाना शुरू करता है। इनिशियल स्टेज में प्यूपा काफ़ी सॉफ्ट होता है, धीरे-धीरे वो प्यूपा हार्ड बनता है। अलग-अलग स्पीशीज़ के बटरफ्लाइज़ अलग-अलग तरह के प्यूपा बनाते हैं, अलग-अलग कलर होता है, अलग-अलग शेप होता है। इसलिए प्यूपा देखकर भी बटरफ्लाई आइडेंटिफिकेशन हो सकता है कि किस बटरफ्लाई का प्यूपा है। बाहर से निर्जीव दिखने वाला प्यूपा अंदर काफ़ी एक्टिव होता है। कह सकते हैं प्यूपा बटरफ्लाई का भी लॉकडाउन स्टेज है, जब कंप्लीट आइसोलेशन में है ये और इस आइसोलेशन के प्रोसेस में ही बटरफ्लाई पूरी तैयार होती है। ऊपर जो प्यूपा आप देख रहे हैं वो कॉमन रोज बटरफ्लाई का प्यूपा है जो आगे हमने कैटरपिलर्स देखे। नीचे का जो प्यूपा है वो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई का प्यूपा है। जैसे जैसे स्टेज प्रोसीड करता है प्यूपा का जो कवर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है और अंदर हमें बटरफ्लाई दिखनी शुरू हो जाती है बाहर इक्लोज होने के जस्ट कुछ समय पहले। फाइनली एडल्ट स्टेज है। इमरजेंस के वक्त पे प्यूपा का केस जो है वो रप्चर होता है, बटरफ्लाई बाहर निकलती है। शुरुआत के स्टेज में बटरफ्लाई काफ़ी सिकुड़ा हुआ होता है और धीरे-धीरे जब हीमोलिव पंप होता है, बटरफ्लाइज के विंग भी स्प्रेड होते हैं, उसका शंकन एब्डोमेन भी फुल्ली एक्सपांड होता है। बटरफ्लाई फिर एक जगह सिलेक्ट करके वहाँ पे थोड़ी देर रहकर अपने विंग्स को फुल्ली स्प्रेड करके, फुल्ली सुखा के फिर अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेती है। यहाँ पे मैंने आपके साथ टेल जे बटरफ्लाई के इक्लोजन के बाद के सीढ़ी शेयर किए हैं। प्यूपा से तुरंत बाहर निकलने के बाद उसके विंग्स आप देखेंगे तो काफ़ी सिकुड़े हुए हैं और धीरे-धीरे विंग्स वो स्प्रेड करके ड्राई करके फिर अपनी फ्लाइट ली है। बटरफ्लाइज खाते नहीं है लेकिन दे सिप लिक्विड, जैसे आगे बताया कि उनका जो ट्यूबलाइट प्रोबोसिस है जो एक स्ट्रॉ का काम करता है, तो कह सकते हैं कि एक फ्लेक्सिबल टंग है उनके लिए। जब काम नहीं होता है तब इस प्रोबोसिस को वो कॉइल करके रखते हैं और जब सिप करना है, जब खाना खाना है तो वो इस प्रोबोसिस को ओपन कर देते हैं। ज़्यादातर बटरफ्लाइज नेक्टर पे डिपेंड होते हैं, फ्लावर के नेक्टर पे, फ्लावर के रस पे, लेकिन उसके अलावा भी बटरफ्लाइज काफ़ी सारे लिक्विड पर भी डिपेंड रहते हैं। सड़े हुए फल हैं, एनिमल ब्लड और एनिमल पीसेस पे भी उनको देखा गया है। जिन लिक्विड से उनको न्यूट्रिएंट मिल सकता है फ्लावर नेक्टर के अलावा, उन न्यूट्रिएंट्स पर भी ये बटरफ्लाइज जाते हैं। ये तो एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर्स है बटरफ्लाइज के कि जो मेल बटरफ्लाइज है उनको पायरोलिजिडेन आर्कुलट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इन आर्कुलट्स के रिच प्लांट्स जो हैं जैसे कि यूट्रोपियम है, टेनोटॉपिस है, उन प्लांट्स पे ये जाते हैं और उनके जो प्लांट्स के पार्ट डेड हो रहे हैं वहाँ पे स्क्रैच करके इस केमिकल को लोग बाहर निकालते हैं। मड पर नेक्टर से उनको ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, लेकिन जैसे कि सॉल्ट है वो मिल नहीं पाता है, इसलिए बटरफ्लाइज एक जगह पर गैदर होते हैं मड पडलिंग के लिए। जहाँ पे कीचड़ है वहाँ पे सॉल्ट्स पानी के साथ मिले हुए हैं और उस लिक्विड को वो इनटेक करते हैं, तो उनकी जो सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है वो मड पडलिंग से फुलफिल होती है। बटरफ्लाइज क्या खाते हैं हमने वो बात की, अभी कुछ है जो बटरफ्लाइज को खाते हैं, तो इनको खाने वाले कौन लोग हैं। इनको छोटे-छोटे बर्ड्स सॉरी छोटे-छोटे इंसेक्ट्स हैं वो खाते हैं, बर्ड्स खाते हैं, स्पाइडर्स, रेप्टाइल्स,
Small mammals, they depend on these butterflies. यहाँ आप देख सकते हैं स्पाइडर ने बटरफ्लाई को कैप्चर किया। कई बार ये भी होता है कि फोटोग्राफी कर रहे होते हैं और अचानक से बटरफ्लाई गायब हो जाता है। ड्रैगन फ्लाई जैसे जो इंसेक्ट्स हैं, जो एम्बुश हंटर्स हैं, बटरफ्लाइज पे अटैक करके ले जा सकते हैं। यहाँ पे और एक इंसेक्ट आप देख सकते हैं, उसने भी बटरफ्लाई को कैप्चर किया है। जो लोग बर्डिंग की फील्ड में, उन्होंने काफ़ी बार देखा होगा बर्ड्स को बटरफ्लाइज के। इन सब से बचने के लिए बटरफ्लाइज ने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स तैयार किए हैं। सबसे आसान है कैमोफ्लेज। एनवायरनमेंट के साथ ब्लेंड हो जाओ कि उनको कोई देख न सके। कुछ बटरफ्लाइज हैं, दे लुक लाइक डेड लीव्स। उनका आकार ड्राई लीव्स के जैसा होता है। यहाँ पे ये ऑरेंज फ्लैश बटरफ्लाई है जो ऑलमोस्ट सूखे हुए पत्ते की तरह दिख रहा है। इसी तरह बुश ब्राउन्स हैं, देन रिंग्स हैं। उनका सूखे पत्तों के साथ काफ़ी बढ़िया कैमोफ्लेज होता है। जब वो आप चलते हैं बुश में और इसकी डिस्टर्बेंस की वजह से जब बटरफ्लाई उड़ते हैं तब पता चलता है। दे कैमोफ्लेज वेरी वेल। सेकेंड ऑप्शन इज वार्निंग कलरेशन। ऐसे ब्राइट कलर्स रखो कि प्रेडेटर को पता चल जाए कि आप डेंजरस हो। इनके जो ब्राइट कलर्स हैं वो प्रेडेटर्स के लिए एक वार्निंग होती है, दैट आई एम डेंजरस, डोंट ईट मी। मैं पैरेटेबल नहीं हूँ, मैं टॉक्सिक हूँ, मैं डेंजरस हूँ। जैसे काफ़ी सारे बटरफ्लाइज हैं, यहाँ पे आप प्लेन टाइगर बटरफ्लाई देख सकते हैं, जो ब्राइट कलर्स दिखा के अपने प्रेडेटर को कन्वे कर देते हैं कि हमें खाना नहीं है। तीसरा तरीका है मिमिक्री का। प्लेन टाइगर जैसे बटरफ्लाइज काफ़ी सारे प्रेडेटर्स के लिए टॉक्सिक है, तो उससे अनरिलेटेड और एक बटरफ्लाई है जेनेडेक फ्लाई फीमेल। वो प्लेन टाइगर की मिमिक्री करती है। वो खुद तो पैरेटेबल है, लेकिन सिंस वो प्लेन टाइगर के जैसे दिखती है, उससे प्रेडेटर्स अवॉइड करते हैं। मिमिक्री में भी दो तरह हैं, कि जहाँ पे एक पैरेटेबल स्पीशीज नॉन पैरेटेबल की मिमिक्री करती है, और दूसरी एक सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे दोनों पैरेटेबल स्पीशीज एक दूसरे की मिमिक्री करते हैं। इससे फ़ायदा ये रहता है कि जब एक जैसे दिखते हैं, शिकार ने एक बार अनपैलेटेबल स्पीशीज को खा लिया है, तो दूसरी बार वो संभल के रहेगा और उसके जैसे दिखने वाले सभी बटरफ्लाइज को अवॉइड करेगा। सेकेंड केस में जहाँ की दोनों ही स्पीशीज अनपैलेटेबल है, तो वहाँ पर सेक्रीफाइस प्रेडेटर दोनों में से किसी को भी हाथ लगाना नहीं चाहेगा, जिसकी वजह से कम इंडिविजुअल्स की डेथ होगी। दूसरा ऑप्शन है फॉल्स टारगेट। प्रेडेटर को मिसगाइड करो कि उसको कहाँ अटैक करना है। यूजुअली कोई भी प्रेडेटर है वो अपने शिकार को उसके फेस की तरफ से मारते हैं, तो इन बटरफ्लाइज ने फॉल्स आई स्पॉट तैयार किए हैं या तो फॉल्स हेड तैयार किया है। यहाँ पर ब्लू पैन की बटरफ्लाई देख सकते हैं कि जिसके विंग्स में नीचे की तरफ फॉल्स आई बने हुए हैं, विच इज गुड इनफ टू मिसगाइड अ प्रेडेटर दैट दीज आर द आईज, कि मेरा सिर पीछे की तरफ है। उसी तरह यहाँ पे सिल्वर लाइन बटरफ्लाई है, तो जिसकी टेल और हेड का पोर्शन ऑलमोस्ट एक सा दिखता है। शिकारी को तो समझ में नहीं आता जल्दी कि कौन सा सिर है कौन सा टेल है। वैसी सिचुएशन में बटरफ्लाइज पे अटैक भी होता है तो सिर्फ इतनी नुकसानी होती है, विंग का कुछ पोर्शन कट जाता है लेकिन जान बच जाती है। फ्लैश कलर्स और एक तरीका है कि बाहर से बटरफ्लाई डल है, अंदर से एकदम ब्राइट है। डल कलर लेके वो छुप जाता है और ब्राइट कलर देके वो अगेन शिकारी को बता देता है कि मैं यहाँ हूँ। लेकिन दिस इज जस्ट टू कन्फ्यूज, कि एक बार फ्लैश दिखा के वो फिर से विंग बंद कर देता है, तो प्रेडेटर को समझ में नहीं आता कि बटरफ्लाई कहाँ गया फिर। बटरफ्लाई के लिए गार्डन अगर तैयार करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर थोड़ी नजर करते हैं।
बटरफ्लाई गार्डन तैयार करने के लिए पहले ये ज़रूरी है कि जहाँ गार्डन बनाना है वहाँ का एक आप सर्वे कर लीजिए कि वहाँ पे क्या-क्या बटरफ्लाइज़ देखने को मिलते हैं। बटरफ्लाई सर्वे के साथ-साथ मैं और एक बात बोलूँगी कि वो बटरफ्लाइज़ किन प्लांट्स पे डिपेंड करता है उसका भी एक सर्वे कीजिए कि वहाँ पे लोकल स्पीशीज़ क्या-क्या हैं। उस हिसाब से एप्रोप्रिएट होस्ट और नेक्टर प्लांट सिलेक्ट कीजिए। लोकली जो मिलते हैं तो सबसे अच्छी बात है। साथ में अल्कोलाइट प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी ज़्यादातर बटरफ्लाइज़ इस नेक्टर पे डिपेंड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बटरफ्लाइज़ हैं जिनको रेज़िन ज़्यादा पसंद है, जैसे रेज़िनस प्लांट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ पौधे लगाने से काम नहीं बनेगा, एक पूरा हैबिटेट क्रिएट करना पड़ता है कि जहाँ पे ये बटरफ्लाइज़ के लिए एक सूटेबल घर तैयार हो सके। धूप के साथ-साथ शेड भी ज़रूरी है, थोड़े मॉइस्ट पैचेज़ भी तैयार करने पड़ेंगे कि जहाँ पे वो पनप कर पाएँ। अगेन आई विल एम्फसाइज़ कि लोकल वेजिटेशन ही प्रेफ़र किया जाए। नेक्टर प्लांट्स इस तरह के सिलेक्ट करें कि जिसमें फ्लावरिंग थ्राउघ द ईयर रहे। सीज़नल ऑर्नामेंटल भी अगर लगाने पड़ते हैं, तो ऐसे सीज़नल ऑर्नामेंटल लगाएँ कि जो अलग-अलग सीज़न में फ्लावर करते हों, ताकि आपके बटरफ्लाई गार्डन में राउंड द ईयर फ्लावर्स रहें। फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी है कि पूरे धूप मिलनी चाहिए, तो प्लांट देम इन फुल सन। अलग-अलग एक-एक पौधा लगाने की बजाय उनको बंच में लगाएँ। पूरा बंच होगा तो वहाँ पे बटरफ्लाई को ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे। टू ऐड सम वाइल्ड प्लांट्स कि जो लोकल प्लांट्स है विल्डरनेस में उग रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस कीजिए, बाहर से एक्सोटिक प्लांट्स बटरफ्लाई गार्डन में इंट्रोड्यूस करने की बजाय। इसके 2 कारण हैं कि बटरफ्लाइज़ पॉलिनेशन जो हमने इम्पोर्टेंस बटरफ्लाई इम्पोर्टेंस की हमने बात की कि ये पॉलिनेशन का काम करते हैं। पॉलिनेशन के साथ-साथ पॉलिनेशन के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ है वो है सीड फॉर्मेशन। बटरफ्लाइज़ जब नेचुरल एनवायरनमेंट में वहाँ का वाइल्ड प्लांट्स को पॉलिनेट कर रहे हैं, तो वाइल्ड प्लांट्स का जो सीड फॉर्मेशन है, उसमें भी वो मदद कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा एक्सोटिक प्लांट्स लगा देंगे, तो उन नेचुरल प्लांट्स का, उन वाइल्ड प्लांट्स का पॉलिनेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। डायरेक्टली उन वाइल्ड प्लांट्स की पॉपुलेशन पे फ़र्क पड़ेगा। तो अगर ऐसी जगह है जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन ज़्यादा है, वहाँ पे जहाँ तक हो सके आप वहाँ के लोकल वेजिटेशन से प्लांट्स लेकर गार्डन में इंट्रोड्यूस कीजिए, ना कि एक्सोटिक प्लांट्स को वहाँ पे लगाएँ। दूसरे प्लांट तरह के प्लांट्स आते हैं लार्वा और होस्ट प्लांट। हमने बटरफ्लाई स्टेजेस की बात की कि ये जो सेकंड स्टेज है यहाँ पे लार्वा बनता है। बटरफ्लाई अपने लार्वल होस्ट प्लांट्स को लेके काफ़ी चूज़ी हैं। अपने लार्वल को होस्ट प्लांट को वो कैसे आइडेंटिफ़ाई करती हैं, तो उनके जो पाँव हैं उसमें केमिकल रिसेप्टर्स हैं। अपने पाँव की मदद से वो अपने होस्ट प्लांट को आइडेंटिफ़ाई करती हैं। एगलिंग के लिए काफ़ी अच्छे बॉटनिस्ट होते हैं ये बटरफ्लाइज़ कि काफ़ी स्पेसिफिक फैमिलीज़ पे इनका एगलिंग होता है। एक बटरफ्लाई का पूरा जो ग्रुप है, जैसे पेंसिल्स है तो वो अकेन्थेसिस फैमिली को पसंद करते हैं। ग्रीन टाइगर है तो वो कैलोट्रोपिस फैमिली को पसंद करते हैं, मिल्कवी फैमिली को पसंद करते हैं। तो इनकी स्पेसिफिसिटी को ध्यान में रखिए। अगर आपने पहले बटरफ्लाई सर्वे किया है अपने एरिया में तो आपको पता है कि कौन से प्लांट्स लगाने हैं, कि जो उन बटरफ्लाइज़ को सपोर्ट करें। कैटरपिलर्स के खाने के लिए वो फूड प्लांट एडेक्वेट हो इसका ध्यान रहे। अनलाइक नेक्टर होस्ट प्लांट्स, लार्वा होस्ट प्लांट को हम थोड़ा शेड या सेमी शेड में लगाते हैं, ताकि जो कैटरपिलर्स निकलते हैं उनको डायरेक्ट हीट ना फेस करनी पड़े, उनको डायरेक्ट सन फेस ना करना पड़े। आइसोलेट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जो प्लांट मैंने शेयर किया है फिफ्थ प्रोग्राम के साथ वो हाथी सूंडी हेलियोट्रोपियम का है। उसी तरह ट्राइकोडर्मा है, कैलोट्रोपिस है, सॉरी क्रोटोलारिया है। इस तरह के अलग-अलग प्लांट्स भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो प्लांट्स हैं वो मेनली मेल ब्रश फुटेड मेंबर्स को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ प्लांट्स जो है जो रेज़िन देते हैं वो स्पेशली इवनिंग ब्राउन्स हैं, बुश ब्राउन हैं, उनके लिए काफ़ी मददरूप हैं। कुछ कॉमन बटरफ्लाई प्लांट्स की नज़र करते हैं, ये आपके गार्डन में आप इजीली एक्सेस करके लगा सकते हैं। स्नेकवीड या पॉटरवीड इसको बटरफ्लाई मैग्नेट भी हम कहते हैं।
स्टिकिटापिटा के बहुत ही अलग-अलग स्पीशीज़ हैं, इंडिका है, जमैकेंसिस है, मिटाबलिस है। इज़ी टू प्रोपेगेट, कटिंग से भी प्रोपेगेट हो जाते हैं और नर्सरी में भी आपको आसानी से मिल जाएँगे। हमारा जो देसी मैरीगोल्ड है, इवन दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। स्पाइसी जियोट्रोफा ये भी बटरफ्लाई मैग्नेट है, बटरफ्लाई इसे काफ़ी पसंद करते हैं, कटिंग से भी इजीली प्रोपेगेट हो जाता है। तो आप अगर यह थोड़े प्लांट भी लेकर उसमें से प्रोपेगेट करके दूसरे तैयार कर सकते हैं। बुडलिया और एक बटरफ्लाई मैग्नेट प्लांट है, यानी इन फ्लावरिंग ये काफ़ी अलग स्पीशीज़ को अट्रैक्ट करता है। फ्लावर्स की खुशबू भी बहुत सुंदर होती है और मॉथ को भी अट्रैक्ट करता है। वाइटेक्स या नगोड ये काफ़ी सुंदर प्लांट है, नेटिव भी है हमारा, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी इसकी काफ़ी है। इस तरह के प्लांट्स को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है कि ये दिखने में बहुत सुंदर नहीं है, इसलिए गार्डन में से इसको ज़्यादा रखा नहीं जाता है। लेकिन ऑर्नामेंटल गार्डन में अगर आप बटरफ्लाई गार्डन प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस तरह के प्लांट्स को जगह दें, जो नेटिव भी है और बटरफ्लाइज के लिए यूज़फुल भी हैं। कोट बटन और एक काफ़ी पॉपुलर फ्लावर है बटरफ्लाई मैग्नेट तरीके नज़रिए से, वाइल्ड में उगने वाला प्लांट है। अलग-अलग प्लांट के साथ-साथ कुछ ट्री स्पीशीज़ भी हैं। हर्ब्स और shrubs के साथ कुछ अलग ट्री स्पीशीज़ भी हैं जो बटरफ्लाइज अट्रैक्ट करने में काफ़ी मदद करती हैं। जैसे मिट्रोडाना पार्विफोलिया है, जब ये फ्लावरिंग में इट अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ बटरफ्लाइज। सिल्वर पॉपकॉर्न जो है वो सिल्वर लाइन्स का बहुत ही फेवरेट है। सिल्वर लाइन्स के साथ-साथ वो अलग-अलग दूसरे ब्लूज़ को भी अट्रैक्ट करता है। कुछ होस्ट प्लांट पे नज़र करते हैं, लार्वल होस्ट प्लांट पे। प्लेन टाइगर है, स्ट्राइप टाइगर है, ब्लू टाइगर है, उनके लिए पूरा जो मिल्कवीड ग्रुप है, कैलोट्रोपिस, एनेस्लेपियस है, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। कॉमन क्रो के लिए लाल करण और हम जो बोनसाई एडेनियम लगाते हैं, वो भी काफ़ी यूज़फुल है। कैक्टस के लिए रिसिनस या रेनबो। जब हम बटरफ्लाई कंजर्वेशन की बात करते हैं तो वी थिंक दैट डेवलपिंग अ बटरफ्लाई गार्डन इज़ गुड इनफ, लेकिन उसके साथ-साथ ये और एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जहाँ पे इस तरह के खेत हैं, रिसिनस के हैं या फिर नींबू की है खेती, वहाँ पर जाकर फार्मर से बात करने की ज़रूरत है कि वो पेस्टिसाइड्स वगैरह ना यूज़ करें और ऑर्गेनिक तरीके यूज़ करें। दैट विल हेल्प इन सेविंग दिस कैटरपिलर्स। टोनी कोस्टर बटरफ्लाइज के लिए कृष्णा कमल और टेरेडा दिखते भी दोनों बहुत खूबसूरत हैं। टेल जे और कॉमन जे बटरफ्लाई के लिए एनोनेसी फैमिली है। एनोनेसी फैमिली के जो आसोपालो ट्री है या सीताफल है, इन्हें हम लगा सकते हैं। मॉर्मोन है, लाइन बटरफ्लाई है और इनफैक्ट लाइन ब्लू है, उनके लिए वो रूकेसी फैमिली पसंद करते हैं। तो जैसे बिलीपत्र है या सिट्रस के अलग-अलग स्पीशीज़ है, वो हम लगा सकते हैं। इमिग्रेंट्स पूरा सिजालपिनेसी के जो केशिया ग्रुप है उसको प्रेफर करते हैं। तो गरमालो हो गया, काशीद है, केशिया तोरा है, केशिया सेना है, वो सब भी ये पसंद करते हैं। आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैंने जो बुक रेफर की है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गाइड टू बटरफ्लाइज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, बटरफ्लाइज ऑफ इंडिया और बटरफ्लाइज ऑफ इंडिया बाय पीटर सर। गुजरात की जो बटरफ्लाइज है उनके लिए अ गाइड टू बटरफ्लाइज ऑफ वेस्टर्न घाट्स बहुत ही सुंदर बुक है। मिलिंद सर और हेमंत सर ने काफ़ी मेहनत की है इसके पीछे। जिन्हें भी इंटरेस्ट है प्लीज़ गो अहेड विद दिस बुक। माफ़ कीजिएगा, गुजराती इतनी अच्छी नहीं है और साथ में हिंदी में भी थोड़ी गड़बड़ होती रहती है। आपके जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ पूछ सकते हैं।
जितनी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर सकती हूँ मैंने किया। इसके बाद जितने क्वेश्चन आंसर्स में हम डिस्कस करेंगे तो अलग ही मज़ा रहेगा। क्वेश्चंस प्लीज। ये ऋषि का प्रश्न है, हाउ मेनी स्पीशीज आर कवर अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। गुजरात की स्पीशीज में हम देखते हैं तो ग्राम ब्लू है, टी ब्लू है, दोनों शेड्यूल 2 में है। अल्बाट्रॉस है, वो शेड्यूल 4 में है। फिर क्रिम्सन रोज है, बेनेडिक्ट फ्लाई है, वो दोनों शेड्यूल 1 में है। यस कुलदीप जी, है एक एप्लीकेशन अवेलेबल तमिलनाडु के एक दोस्त से उन्होंने डेवलप की है। अभी मुझे डिटेल्स याद नहीं है लेकिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फिर। उन्होंने बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन बनाई है कि आप फोटोग्राफ आपने जो क्लिक किया है उसको शेयर करके बटरफ्लाई का आईडी रिवील कर सकते हैं। उन्होंने इंटर वेस्टर्न घाट्स के लिए एप्लीकेशन तैयार किया है। Rambalia, do butterflies get attracted to artificial smells? If yes, how does it affect them? I'm sorry नेहा, इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि आर्टिफिशियल स्मेल को अट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन, लुक इनटू इट। दिनेश जी, इन रेसिडेंस विच प्लांट यू सजेस्ट? दिनेश जी, मैंने जो प्लांट्स के नाम आपके साथ शेयर किए हैं वो सारे रेजिडेंशियल एरिया में जो आप अपने गार्डन में कर सकते हैं वही शेयर किए हैं। आई लिव इन सूरत। दिनेश जी, ये जो सारे प्लांट्स है वो सूरत के लिए भी हो सकता है। Darshan Saparia, can butterflies have specific territories? Yes, they do have specific territories and they are very specific about it. In fact, some of the males exhibit territorial fights also. अपने एरिया का पेट्रोलिंग भी करते हैं और अगर कोई दूसरा मेल उन्हें अपने एरिया में दिखता है तो उसको खदेड़ने की भी कोशिश करते हैं। अगर आपने एक बटरफ्लाई एक एरिया में देखा है तो चांसेस आर वेरी हाई दैट यू विल स्पॉट देम अगेन इन द सेम एरिया। Completely, what are your views about butterfly garden in every city like Kevadia? Because people like butterflies but have very less knowledge about it. बटरफ्लाइज गार्डन के साथ साथ ये ज़रूरी है कि जो हमारा मीडिया के जो मित्र है वो सपोर्ट करें। दे शुड राइट मोर अबाउट बटरफ्लाइज, टॉकिंग टू डिफरेंट एक्सपर्ट्स, टेकिंग देयर ओपिनियंस। बटरफ्लाई गार्डन्स होने चाहिए और पीपल शुड एक्सप्लोर। लेकिन साथ में जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि बटरफ्लाई गार्डन्स कहाँ डेवलप हो रहे हैं वो भी एक देखना ज़रूरी है कि नेटिव फ्लोरा के कॉस्ट पे बटरफ्लाई गार्डन्स ना डेवलप हों।
त्रिपुरा को भी सपोर्ट करे उस तरह के हम गार्डन बनाएं। जहाँ तक हो सके लोकल वेजिटेशन को यूज़ करके ये गार्डन डेवलप किए जाए। Usually जब गार्डन नाम आता है तो we try to make it more and more ornamental, but rather making it ornamental, we should make it more subject oriented. We should make it more natural. It supports the entire habitat. Rakan Singh Shekhawati, some special behavior of butterflies. Yes, there are certain special behaviors. Considering time limit, I have to miss a few of them. The way I said about पेट्रोलिंग, उसी तरह से गलिंग बिहेवियर भी है। देन कैटरपिलर्स का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू स्किप द होल थिंग। The same like butterflies, even at their young stage, when they are at caterpillar stage, they use different mechanisms for their defense. कैटरपिलर्स भी कैमोफ्लेज करते हैं, वो भी अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे लिक्सनिडी के बटरफ्लाइज के कैटरपिलर्स हैं, वो कैट्स के साथ एंड्स के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, so that they get protection and in turn ants are getting sugary syrup. मयूरवारिया हाउ स्टूडेंट्स कैन हेल्प इन अवेयरनेस एक्टिविटीज। इनके लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज का प्लान आउट कर सकते हैं। दे शुड गो मोर फॉर नेचर वॉक्स। वी कैन डेवलप बटरफ्लाई गार्डन्स इन द स्कूल्स। दैट्स हाउ दे कैन स्प्रेड मैसेज। स्कूल्स और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे अलग अलग तरह के बटरफ्लाई पोस्ट प्लांट्स मास्टर प्लांट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वी कैन अरेंज फॉर सम क्रिएटिव एक्टिविटीज फॉर देम। Please Verma, butterflies have regeneration power. If their wings are damaged, no. Butterfly के पास इस तरह का regeneration power नहीं है that they can reclaim their wings. When the wings are damaged, they are gone. इसलिए ये हम थोड़ा जोर देते कि बटरफ्लाइज को पकड़ने की कोशिश ना करें उनको, क्योंकि विंग्स एक बार अगर डैमेज हो जाते हैं तो उनके लिए बड़ी नुकसानी है। हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि स्केल्स आर गेटिंग रिप्ड ऑफ। बटरफ्लाइज के लिए स्केल्स का लॉस बहुत सारे लॉसेस के साथ एसोसिएटेड है। दे कैन नॉट वार्म अप देयर विंग्स, उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी वीक हो जाता है। बेस्ट सीजन ऑफ फॉर बटरफ्लाइंग इज पोस्ट मानसून। बारिश के बाद का जो टाइम है वो बटरफ्लाइंग के लिए काफ़ी अच्छा है। आई एम सीइंग दिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुजरात। Social behavior of butterfly. Lakhan ji, could you please be a little specific? Ramesh Gandhi, best plant in urban area for butterfly. रमेश गांधी, मैंने आपके साथ जो जो प्लांट्स के नाम शेयर किए हैं वो सारे अर्बन एरिया के लिए फिट है, रादर ज़्यादा अर्बन एरियाज के लिए फिट है। Alice Parmar, average lifespan of butterflies. Average lifespan varies from species to species. ब्लूज जो है वो 2 to 4 weeks तक का उनका लाइफ स्पान है। स्वेलोटेल्स या ब्रश फूटेड है, दे कैन गो अप टू 8 months. This is what I have read in literature, that's what I'm sharing with you. लेकिन जो एवरेज लाइफ स्पान है वो इट नीड्स टू बी वर्कड आउट। इन कैप्टिविटी कितना है, नेचर में कितना है, फिर दिस काइंड ऑफ रिसर्च इज लैकिंग। दक्षिण सफरिया बटरफ्लाई एनी शेड्यूल अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यस, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुजरात मैंने आपको बताया कि क्रिम्सन रोज है, डनेड एक्फ्लाई है, वो शेड्यूल 1 में है। पॉइंटेड सीलेट व्यू भी शेड्यूल में आती है। देन अल्बाट्रॉस जो है वो शेड्यूल 4 में है। ग्राम ब्लू पिग शेड्यूल 2 में है। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि बटरफ्लाइज में मेल या कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो काफ़ी सारे बटरफ्लाइज हैं जो डाइमॉर्फिज्म यानी मेल या फीमेल, उनके कलर्स अलग होते हैं, उनका अपीयरेंस अलग होता है, वहाँ हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कुछ बटरफ्लाइज पॉलीमॉर्फिज्म भी एग्जिबिट करते हैं कि जहाँ पे उनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, या तो स्पीशीज एक ही लेकिन उनके कुछ कलरिंग अलग है या कुछ विंग्स अलग हैं विंग्स के कलर्स के।
दिनेश जी, अभी तो कोई गुजराती बुक मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन वी आर वर्किंग अपॉन इट कि गुजराती में लिटरेचर तैयार किया जाए। इनफैक्ट ये पूरा प्रेजेंटेशन मैं गुजराती में ही तैयार कर रही थी। लेकिन फिर ध्यान आया, ऋषि ने मुझे बताया कि हमारे पास मिक्स ऑडियंस है, तो हमने गुजराती की बजाय एक इंग्लिश, हिंदी और गुजराती दोनों में प्रयास किया है। बट डेफिनेटली फॉर चिल्ड्रन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कम आउट विद द गुजराती बुक. Mayur, any platform you suggest for further learning? Yes, social media is very powerful platform indeed. सोशल प्लेटफॉर्म पे ही, फेसबुक पर भी आप अलग अलग, फेसबुक इंस्टाग्राम है, ज़्यादा फेसबुक पर काफ़ी सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन करें, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने बटरफ्लाई ग्रुप्स हैं। Any social media platform you would like to suggest further learning? Any NGO? एनजीओस, काफ़ी सारे नेचर लविंग एनजीओज हैं और जिन्होंने ये पूरा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, दे आर द बेस्ट गाइड्स, दे आर द बेस्ट एनजीओज इनफैक्ट। नेचर क्लब सूरत का काफ़ी पायनियरिंग वर्क रहा है बटरफ्लाइंग में। जब तक दूसरे क्वेश्चन आते हैं तब तक और एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अ, गुजरात में बटरफ्लाइंग की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है। इनफैक्ट जितने बटरफ्लाइज को लेकर रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश होते हैं, वहाँ पे कुछ नाम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट, पुराने अगर हम लिटरेचर देखा जाए तो इवांस को हम बटरफ्लाई आइडेंटिफिकेशन के लिए एक की बुक मानते हैं। उस तरह दूसरी जो बुक है विंटर ब्लिस, व्हिच केम आउट इन 1957, इवन दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। और उनके जो ऑथर है विंटर ब्लिस, आपको गुजरात के जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैं खास शेयर कर रही हूँ। विंटर ब्लिस जो है 1946 में गुजरात में आए थे और 1946 ऑनवर्ड्स अप टू आई थिंक 1963 ही रिमेन प्रिंसिपल ऑफ रामकुमार कॉलेज ऑफ राजकोट। तो गुजरात के साथ विंटर ब्लिस का काफ़ी मजबूत कनेक्शन है और इस बात का हमें प्राउड भी होना चाहिए। धौल भाई, कैन यू प्लीज इलाबरेट ऑन स्टेटस ऑफ ब्लैक राजा इन सौराष्ट्र? धौल भाई, सौराष्ट्र में ब्लैक राजा का स्टेटस का मुझे इतना आइडिया नहीं है। इनफैक्ट सौराष्ट्र एक एरिया है कि जिसे बहुत ही डिटेल में एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आपके भी जो ऑब्जर्वेशन हो प्लीज़ शेयर करते रहिएगा। गुजरात के बटरफ्लाइज के लिए इसलिए एक बटरफ्लाइज ऑफ गुजरात प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है कि जहाँ आप अपने ऑब्जर्वेशन शेयर कर सकते हैं। और धवल जी, मैं आपको बोलूँगी कि आप शिवम भट्ट से भी एक बार बात कीजिएगा। शिवम सौराष्ट्र में काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा है। दूसरे भावेश भाई त्रिवेदी हैं। भावेश भाई त्रिवेदी ने ब्लैक राजा वहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। अगर ये भी प्रश्न मुझे पूछा जाता है कि बटरफ्लाइज की डाइवर्सिटी गुजरात में बाकी जगह से कम क्यों है, तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट देखते हैं या वेस्टर्न घाट देखते हैं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ और गुजरात में 150 के आसपास ही स्पीशीज़ क्यों है? बटरफ्लाइज आर बेसिकली द मॉर्शलरी, तो गुजरात और राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश में उनको ज़्यादा अनुकूल नहीं होता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्पीशीज़ कम है लेकिन इंडिविजुअल्स भी उतने मिल जाते हैं यहाँ पे। तो गुजरात में देखा जाए तो ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें साउथ गुजरात में देखने को मिलती है। थैंक यू मयूर फॉर योर रिप्लाई टू द Dhawalbhai's query.
ब्लैक राजा समहाउ मेरा फेवरेट बटरफ्लाई है गुजरात की। और ब्लैक राजा हमको द्वारका तक मिला है। और जुगल भाई तिवारी जी हैं कच्छ के, उनको कच्छ तक मिला है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बिहेवियर है ब्लैक राजा का। लखन जी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एनी स्पेसिफिक बटरफ्लाई फाइंड इन ओनली डेजर्ट एरियाज? यस देयर इज। कुछ बटरफ्लाइज जो हैं वो सिंध रीजन में, यानी कि गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान का जो एरिया है वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे टोनी सिल्वर लाइन है, तो इस एरिया में देखने को मिलती है। टोनी सिल्वर लाइन का अब तक राजस्थान और गुजरात से ही रिकॉर्ड है। जी दिनेश जी, moth is different from butterfly. Yes, moth are very much different from butterflies. लेकिन जो डिफरेंसेस मैंने आपके यहाँ पे डिस्कस किए हैं, एक बार पीटर सर के साथ भी डिस्कस हुआ था कि कुछ मौत ऐसे भी हैं जिनमें मौत और बटरफ्लाई के बीच में बेसिक डिफरेंस फ्रेनुलम का हम मान के चलते हैं कि जिसकी वजह से उनके फोरविंग और हाइंड विंग कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मौत मिले हैं जिनमें ये फ्रेनुलम नहीं है। मौत मेनली नॉक्टर्नल है, बटरफ्लाइज मेनली डायर्नल है। मुझे लगता है हाउ एसेंशियली बटरफ्लाई पॉपुलेशन अफेक्ट एनर्जी। Sorry, Mela, I'm not getting the question. उसका जो एक जगह का जो इकोलॉजिकल सिचुएशन है वो बटरफ्लाई पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। Pressure and temperature impact on earth environment. Yes, temperature does impact. Whether temperature and moisture दोनों का इफेक्ट है। विंटर्स में जब टेम्परेचर, ये हमारे ऑब्जर्वेशन से रहे हैं कि विंटर्स में जब टेम्परेचर काफ़ी लो होता है तो बटरफ्लाइज एग स्टेज में, कभी कभी प्यूपा के स्टेज में और कभी लार्वा के स्टेज में भी हाइबरनेट करते हैं। So egg will remain as such as long as the temperature is cold and the temperature is favorable. egg का hatching भी होता है। And similarly caterpillars they form pupa, और pupa है तो pupa से butterfly भी बाहर निकलता है। So if the temperature is very low, it helps टेम्परेचर काफ़ी लो है तो बटरफ्लाई उस टाइम पे जिस तरह रेप्टाइल्स हाइबरनेट करते हैं उनका ये अलग तरीका हाइबरनेशन है कि जिस स्टेज में बटरफ्लाई उसी स्टेज में वो रुक जाएगा और टेम्परेचर फेवर होने पर दे विल अगेन अचीव सक्सेसिव स्टेजेस। मैंने काफ़ी सारे डिस्कशन आप लोगों के साथ गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में भी किए हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जाए तो काफ़ी वक्त चाहिए। काफ़ी सारे स्पीशीज़ जो है इंडिया में अलग अलग एरियाज को लेके ही इंडेमिक हैं। गुजरात के बट गुजरात इस तरह से एक स्टेट खास हो जाता है कि हमारे पास बहुत ही अलग अलग तरह के डाइवर्स हैबिटाट्स हैं यहाँ पर। हमारे पास डेजर्ट भी है, सी कोस्ट भी है, वी हैव फॉरेस्ट ऑल्सो। Considering this diversity, both butterfly and moth diversities are under study.
तो जो भी रिसर्च स्टूडेंट्स उनसे एक अपील हो रहा है, एट द सेम टाइम जो जिन्हें इंटरेस्ट है, दोज हु आर ऑब्जर्विंग बटरफ्लाइज रेगुलरली, आपके ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करते रहिए एंड डू शेयर एक अच्छा डेटाबेस एंड वी कैन कम आउट विद गुड लिटरेचर फॉर स्टूडेंट्स फॉर मोर लर्निंग। काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन में गैप्स हैं कि काफ़ी स्टडी स्पीशीज़ हम देखते हैं कि जो साउथ गुजरात में मिल रही है, महाराष्ट्र में मिल रही है और नॉर्थ में मिल रही है, तो गुजरात में नहीं मिल रही है। तो उन स्पीशीज़ का गैप क्यों हो रहा है, वो भी जानना ज़रूरी है। With nutrition, they get by mud puddling. By mud puddling, they can obtain salts. Especially for male butterflies, it is important to avail salts through mud puddling. It helps them in forming sperms. कुछ केसेस में फीमेल बटरफ्लाइज को भी मड पडलिंग करते हुए देखा गया है। सो इट विल नॉट बी, ज़्यादातर मेल बटरफ्लाइज को ही मड पडलिंग करते हुए देखते हैं। The nutrition they are getting are basically salts and minerals, dissolved salts and minerals rather. गुजरात में मौत को लेकर इन्फॉर्मेशन काफ़ी लैकिंग है, तो जिनमें भी इंटरेस्ट है डू एक्सप्लोर दिस फील्ड। और मौत को लेकर भी हमारे पास काफ़ी सारे नेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स विल बी रेडी टू हेल्प। इवन गुजरात में बटरफ्लाइंग के लिए हमें आइजक सर हैं, पीटर सर है, मिलिंद सर है, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है एंड टाइम टू टाइम दे कीप हेल्पिंग अस इन आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज डेवलपिंग लिटरेचर। उनका काफ़ी सपोर्ट रहता है। ये सारे एक्सपर्ट्स काफ़ी इजीली अप्रोचेबल है। आपको भी कुछ डाउट है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हर साल आप कोशिश करते हैं कि इन एक्सपर्ट्स को गुजरात बुलाया जाए और उनके साथ हम साल में एक बार एक सेशन करें। दिनेश जी का और एक क्वेश्चन था कि इज देयर एनी बटरफ्लाई वॉकर मीट। दिनेश जी, इस साल बारिश ज़्यादा होने की वजह से हम लोग बटरफ्लाई मीट नहीं कर पाए। हमने बटरफ्लाई मीट इस बार तो फिर पोस्टपोन करते करते वी हैड टू पुट इट ऑफ कंसीडरिंग सम पर्सनल हेल्थ इशू ऑल्सो। लेकिन इस साल आप देखते हैं कि किस तरह का माहौल रहता है। वी आर अफेक्टेड बाय कोविड-19। लेट्स सी इस माहौल खत्म होने के बाद अगर हम पोस्ट मानसून बटरफ्लाई मीट कर पाते हैं तो डेफिनेटली वी विल। अदरवाइज ऑनलाइन डिस्कशंस आर ऑलवेज देयर। माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंडिया में माइग्रेशन को लेके भी काफ़ी लिमिटेड स्टडीज़ हैं। स्पेशली साउथ साउथ इंडिया में काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं। अल्बर्टोस है, पेंटेड लेडी है, देन टी ब्लू है, इनके माइग्रेशन ऑब्जर्व किए गए हैं। गुजरात में मैंने आज तक बस एक ही बार, दो बार ही आई हैव सीन माइग्रेशन ऑफ कॉमन इमिग्रेंट्स। काफ़ी अगर माइग्रेशन के सब डिटेल में, अगर आप माइग्रेशन अगर कोई डिटेल में जानना चाहता है तो डू रीड अबाउट मोनार्क माइग्रेशन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड वेरी इंटरेस्टिंग माइग्रेशन। जिस तरह हम बटरफ्लाइज को बायोलॉजिकल इंडिकेटर मान के चलते हैं, जहाँ पे जब बटरफ्लाइज रियलाइज करते हैं कि इनफ एग्स आर लेड एंड कैटरपिलर्स may not get adequate food, so at that time they are migrating from one region to another, also to settle with the specific climatic needs they migrate. So definitely when it comes to butterflies, do read about monarch migration. It is one of the best.
Any specific dance patterns in meeting season? In meeting season for Mega North, yes, there are courtship. जिस तरह बर्ड्स में देखते हैं कि अलग-अलग बर्ड्स एक कोर्टशिप डिस्प्ले करते हैं, तो वैसे बटरफ्लाइज में भी कोर्टशिप डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। और अगर इनफैक्ट फीमेल्स डू रिजेक्ट मेल्स, अगर वो मीटिंग के लिए तैयार नहीं है तो शी विल रेज हर एब्डोमेन टू रिजेक्ट द मेल। तो उनके डांस पैटर्न भी देखने को मिलता है, जिसे हम कोर्टशिप कहते हैं, वो भी देखने को मिलता है। बिल्कुल दिनेश जी, यहाँ पे हमारे डिस्कशन के बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो डू फील फ्री टू आस्क। जितना मैं आंसर कर पाऊंगी उतना करेंगे, और बाकी तो मेरे लिए भी लर्निंग रहेगा। ये काफ़ी वास्ट फील्ड है और इट इज़ डिफिकल्ट टू कॉल वन सेल्फ एन एक्सपर्ट। मैंने आपके साथ जो रेफरेंस बुक्स के नाम शेयर किए, दे आर द एक्सपर्ट्स। वो तो अभी सीख रहे हैं और काफ़ी सीखना भी बाकी है। बट वट एवर જેટલું જાણ્યું છે માણ્યું છે એટલું તમારી સાથે શેર કરીએ છીએ. વટ એવર આઈ નો આઈ એમ શેરિંગ વિથ યુ ઓલ. Any coexistence relation between any birds and butterflies? Yes, very much. Because butterflies they are food for lots of birds. And the way से कि जैसे एग्जांपल देते हैं तो एक मित्र से बात हो रही थी पोलो फॉरेस्ट को लेकर। तो उनका काम रेप्टर्स पे है, उनको बताया कि अगर वहाँ पे बटरफ्लाइज की पॉपुलेशन अच्छी है तो रेप्टर्स की भी पॉपुलेशन अच्छी ही होगी। कारण ये है कि जब फूड चेन का सबसे बेस स्ट्रॉन्ग है तो टॉप प्रेडेटर्स की संख्या ज़्यादा रहेगी ही। सो दैट्स हाउ द कोएक्सिस्टेंस गोज़। बटरफ्लाइज पे जो छोटे बर्ड्स डिपेंडेंट पे है, उन पर ये जो प्रेडेटर बर्ड्स हैं वो डिपेंडेंट है। सो द होल चेन इज रिलेटेड। पूरी प्रेजेंटेशन जैसा मैंने आपको बताया कि बटरफ्लाइज सिर्फ नेक्टर ही नहीं लेते हैं, लेकिन दे डू फीड अपॉन डेड एनिमल्स ऑल्सो। दे डू फीड अपॉन फीकल मैटर इन फॉरेस्ट। जैसे एलिफेंट के फीकल मटीरियल है तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे बटरफ्लाइज देखने को मिलेंगे। ककून अंदर बटरफ्लाई केवी रीते बने છે? ककून के अंदर बटरफ्लाई कैसे बनता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। काफ़ी सारे लोगों को ये होता है कि कैटरपिलर अपने आसपास ककून बना लेता है और फिर उसके पंख निकल आते हैं कैटरपिलर के और वो बाहर आ जाता है। बट विद इन ककून इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस गोइंग ऑन। ककून के अंदर जाने के बाद जो कैटरपिलर का नर्वस सिस्टम है, उसके अलावा बाकी की जो ऑर्गन्स है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। पूरा बॉडी फिर से रीऑर्गेनाइज होता है। इवन इसके स्टडीज अभी चल रहे हैं। कुछ एक पेपर्स भी मुझे रीड करने में आए थे कि अंदर क्या चलता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि पूरे लिक्विड में से एक कॉम्प्लिकेटेड बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, उन्होंने पूरा बटरफ्लाई मॉर्फोलॉजी का बात किया कि उसके इतने बॉडी पार्ट्स है, इतने उसके स्केल्स, इतने कलर्स है, तो उस लिक्विड में से तैयार होता है।
अगर गलती से आपसे ककून टूट जाए कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हुआ है, तो अंदर से फ्लूइड निकलता है। That whole fluid is getting reorganized into these complicated structures. It's really very interesting. કોકોન જો ભૂલથી તૂટી જાય તો કોકોનમાંથી લિક્વિડ નીકળે છે બહાર. એટલે જ્યારે પણ બટરફ્લાય રેરિંગ કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે સાવચેતી રાખીએ છીએ કે કોકોનને બહુ ડિસ્ટર્બ ન કરવું. એ જે પોઝિશનમાં હોય એ પોઝિશનમાં રાખવું. કારણ કે આગળ અંદર કકુનની અંદર એની શરીરની રચનાની પ્રોસેસ ચાલી રહી હોય છે. જે આખું લિક્વિડ છે એ નવી રીતે શરીરમાં ગોઠવાય છે અને પછી પતંગિયું બહાર નીકળે છે. એટલે જ્યારે પતંગિયું બહાર નીકળતું હોય ત્યારે એનામાં ભીનાશ હોય તો પતંગે આખું પોતાને કોરા થવું પડે અને પછી એ ઉડી શકે છે. Nice question, Kansara. Any adaptation seen in the butterflies? Uh, yes, we discussed already, like camouflage and all these are adaptations only. The what we discussed in behavior. Camouflaging is an adaptation to escape from enemies. Similarly, butterfly food are always veg or sometimes non-veg food or liquid. Yes, they do prefer non-veg food and liquid. एज ए सर का एक बहुत इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ है जहाँ पर मरे हुए सांप पर बटरफ्लाइज फीड कर रहे हैं. दे वर फीडिंग अपॉन ब्लड. तो बटरफ्लाइज जितने खूबसूरत दिखते हैं उनका डाइट इतना खूबसूरत है वो ज़रूरी नहीं है. हमें पढ़ाया जाता है कि बटरफ्लाइज आर ब्यूटीफुल एंड दे फीड ऑन फ्लावर नेक्टर. तो ज़रूरी नहीं कि वो फूलों का ही रस लेते हैं. वो नॉन वेजिटेरियन मटीरियल भी प्रेफर करते हैं. बटरफ्लाइज का डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ी बात करते हैं तो दे आर फाउंड पूरे ट्रॉपिकल एरिया में. हम देखा जाए तो बटरफ्लाइज की डाइवर्सिटी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू temperate regions. If you go at a higher altitude, so वहाँ पे अपोलो जैसे रेयर बटरफ्लाइज देखने को मिलते हैं. They flicker up to good height. तो काफ़ी ऐसे बटरफ्लाइज हैं जो डेजर्ट एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है तो कुछ आइस एरिया में भी रिस्ट्रिक्टेड है. काफ़ी स्टूडेंट्स से उनकी क्वेरी रहती है बटरफ्लाई कलेक्शन को लेकर. तो अगर आप किसी प्रोटेक्टेड एरिया से कलेक्शन कर रहे हैं, काफ़ी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए मित्र भी हैं हमारे साथ. तो अगर कोई प्रोटेक्टेड एरिया से आप कलेक्शन कर रहे हैं तो आपके पास फ्री वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन होना ज़रूरी है. और अगर कोई स्टेडियम स्पीशीज इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली यू नीड परमिशन. और जनरल एरिया से आप कलेक्शन कर सकते हैं बट इफ़ यू आर मेकिंग कलेक्शन फ्रॉम प्रोटेक्टेड एरिया फॉर नॉन स्टेडियल स्पीशीज तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. और कौन-कौन सी स्पीशीज़ आप कलेक्ट कर रहे हैं उसका भी आपको लिस्ट देना रहेगा. तो आई वुड सजेस्ट कि कलेक्शन अगर आप करते हैं तो डू इट प्रॉपर्ली. मेथोडोलॉजिकली आप इंफॉर्मेशन उस एरिया की कलेक्ट करके अप्रोच टू वाइल्ड लाइफ वार्डन एंड देन यू टेक परमिशन फॉर द कलेक्शन पर्पस. Artificial puddling may be like a very nice question that if you put an artificial smell on artificial flower, then what will happen? Or if you make artificial mud puddling by putting some salt, then what will happen? Butterflies, they
locate their plants on the basis of the sensors they have. उनके पाँव में जो chemical sensors पाँव में जो chemicals detect करने के लिए जो sensors है उसके हिसाब से वो chemical detect करते हैं. So if मैंने कोशिश की नॉट विद आर्टिफिशियल स्मेल बट विद द नेचुरल वन कि क्रोटोलारिया का जो लिक्विड है वो उंगली पे लगाया देखने के लिए कि क्रोटोलारिया लीफ क्रश करने के बाद जो केमिकल्स मेरे हाथ में लगे उस पर बटरफ्लाइज आते हैं या नहीं आते हैं. दे डिड कम. उनको मतलब प्लांट से नहीं था, उनको मतलब जो क्रोटोलारिया की लीफ में केमिकल्स था उसी से था. So when there was liquid put on the hand, the butterflies came on it. इसी तरह आर्टिफिशियल मड पडल तैयार किया जाता है तो उस वहाँ पर भी आते हैं. मड पडल के लिए सैंडी जिस तरह का एटमॉस्फेयर है उस हिसाब से हम तैयार कर सकते हैं. बटरफ्लाई गार्डन में काम करे केयर टेकर से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि वो आर्टिफिशियली सॉइल डाल के भी अट्रैक्ट करते हैं. तो डू बटरफ्लाई हियर क्या बटरफ्लाई सुन सकते हैं? नहीं, वो सुन नहीं सकते लेकिन दे डू रिएक्ट टू वाइब्रेशन के जैसा. अगर आसपास से कोई निकलता है तो उन्हें पता चलता है, कंपल्सन को पता चल जाता है मूवमेंट का. बटरफ्लाइज की जो एनिमीज हैं नॉट नेसेसरीली दे विल अटैक ओनली इन द एडल्ट स्टेज. काफ़ी सारे ऐसे एनिमीज हैं जो बटरफ्लाइज को उनके एग, प्यूपा और कैटरपिलर स्टेज में भी अटैक करते हैं. जैसे कि वास्प है तो वो वास्प बटरफ्लाई के एग में भी अपने एग ले कर सकती हैं. दे कैन ले एग इन प्यूपा ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम देर आर सम predators which can lay egg in caterpillar also. तो सभी स्टेजेस पे बटरफ्लाइज को एक अलग अलग तरह के डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करने पड़ते हैं. वेरी अनलाइकली लगता है क्योंकि इवन आफ्टर आईवीआई मदर डजंट रिमेंबर फॉर द चिल्ड्रन. फैमिली स्ट्रक्चर की बात ही नहीं आती है. बटरफ्लाइज की आई साइट या देखने की कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो दे आर नोन टू कैप्चर द न्यू रेडिएशन तो वो भी देख सकते हैं. तो शायद जिस तरह से हम कलर्स देखते हैं वो कुछ अलग तरीके से कलर्स देखते हैं. तो अच्छा सेशन रहा आज का. ऑलरेडी हम 24-25 मिनट्स एक्स्ट्रा कर रहे हैं.
I think we should have to end up here.